Eid Mubarak to everyone watching. I am here at Masjid-e Qadriya. There is a festive spirit of Eid is truly coming alive. As you can see, large number of people have gathered and wearing traditional attire beautifully and greeting each other with warmth and joy. Eid is not just a festival, it's celebration of faith, gratitude and togetherness. After a month of fasting, today marks the day of Eid. From early morning prayers to sharing the sweets and spreading the smiles, the atmosphere clearly tells us the true spirit of Eid. Now, let's take a closer look of how people are embracing the festival. अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फित्र का दिन है। एक महीना हमने रोज़े रखे और रोज़े रख कर अल्लाह की रज़ा हासिल की और अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शिश की दुआ मांगने के लिए मैदान में तशरीफ़ लाए और आकर हमने खुदा का शुक्रिया दो गाने के तरीक़े पे अदा किया और तमाम ईमान वालों को बल्कि बिरादरान वतन को सबको हमने ये पैगाम दिया कि इस ईद की खुशी में हमारे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बल्कि सारे आलम इस्लाम को बल्कि सारी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि ईद के दिन हर एक मिलजुल कर रहें, आपस में गले मिलें, कदूरतों को दूर कर लें, नफ़रतें मिटा लें और हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। यही पैगाम ईद उल फित्र हमें देती है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಾಗಿ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ। ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಕತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ। ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತವೆ ಹೊರತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್, ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚರಿತ್ರಾಹಾರವಾದಂಥ ನಾಡಿದು. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇವತ್ತು ಖುದ್ದು ಸಾಬ್ ಈದ್ಗಾಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು 30 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎದುರುಗಡೆ 30 ದಿವಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ. ಆ ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳುವಂಥ ದಿವಸ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಬರೀ ಬೆಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತನು ಮನ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಅಪ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ದೇವರು ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮತೀಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಅಂದರೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಈದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೆಸೇಜು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈದಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈದಿನ ನಮಾಜಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದೇ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕಡೆ ನಡಿಬೇಕು ದೇಶ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, coexistence. Is the message of Islam, is the message of Eid. That's what our Chief Minister has also told us. There are lots of disturbances in the country, there are lots of disturbances around the world. We all are prayed that everything should they come to an end and everything should be peaceful and we all should live peacefully and there should be a peaceful coexistence. We all have prayed for universal brotherhood. First of all, thank you to Almighty God that we have successfully completed our 30 days fasting, and by blessing of Almighty God, we are very thankful to our Karnataka government, Mr. Siddaramaiah sir, and our Shivajinagar MLA Rizwan Arshad sir. They have run so much facility to all the people who has gathered here, and especially our Juma Masjid Trust Board and other people. And we should thankful to Almighty God as you know in the whole world the situation is totally different. Many people are suffering for many small things. As you know the big war is going on, like Iran, America and Israel war is going on. Many people have sacrificed their life, and I pray Almighty God to give them God rest them in peace, and that's all, nothing else. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी और मसरत का मौका है इस वक्त में
तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल व करम से बासुकून व आफ़ियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रखे और अमन के साथ हुआ। और माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन रहा, खुसूसन हमारे कर्नाटक में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून और आफ़ियत के साथ कोई किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान के साथ, आफ़ियत के साथ, खुशियों के साथ माशाल्लाह सब मिलकर जुलकर माशाल्लाह जो ईद की जो खुशी आज खुद्दूस साहब की ईदगाह में जो देखा जा रहा है, माशाल्लाह देखकर ही मालूम हो सकता है कि कितनी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह पीस ऑफ माइंड थे पूरे, अल्लाह का करम है। और हमारे MLA साहब भी रिजवान साहब और इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो आए थे, और उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पूरा मेंटेनेंस किया और बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अपने इसको अच्छा कोऑपरेट किया। और शुक्रिया अदा करते हैं सारों का हम भी और डिपार्टमेंट का भी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, समझे। ऐसे ही माशाल्लाह होता रहा सबके साथ तो खिदमत, तो ऐसे ही माशाल्लाह खुशियाँ हर साल देखने को मिलेंगे। First of all, I would like to congratulate all our brothers. Happy Ramzan, Happy Eid ul-Fitr Mubarak to all my brothers. And Karnataka, especially the whole India, is a peaceful country. Though the situation is so bad outside India, thank God that all the communities have been gathered and we are celebrating this Eid with a lot of joy, prosperity and peacefulness. And especially thank our Chief Minister Sri Siddaramaiah ji for coming here and greeting all of us, and we really thank him, and his support is always there with us. And I also thank on behalf of all our Muslim brothers that he is one of our best leader, and Eid Mubarak to everyone. Let's live peacefully and humanitily. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हम सबको प्यारे अल्लाह कबूल किए। उससे पहले जितने भी लोग थे अब हमारे दरमियान नहीं हैं। प्यारे अल्लाह का फ़ज़ल एहसान करम हमारा हम सब के ऊपर, हम सबको प्यारे अल्लाह एक रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की और तरावीह पूरी अदा करने की और ईद उल फ़ितर जैसी नियामत प्यारे अल्लाह हम सबको अता किए। ये ईद उल फ़ितर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन है। ये खुशी में गरीब अमीर सब एक जगह जमा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे अल्लाह ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया में कोई मालदार पूरे गरीब सब एक हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईदगाह खुद्दूस साहब में आए, जमा हुए, ईद की नमाज़ अदा करें। प्यारे अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। पूरी दुनिया में जो मुसीबत परेशानी आ रही है, प्यारे अल्लाह इस ईद उल फ़ितर की बरकत से, प्यारे अल्लाह इस नियामतों से, प्यारे अल्लाह पूरे मुसीबतों को, परेशानियों को, लड़ाइयों को ख़त्म फरमाए। हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। हम सबको यही दुआ है कि प्यारे अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए। और हमारे यहाँ के जो MLA साहब हैं रिजवान साहब, अल्लाह उनको भी जज़ाख़ैर अता फरमाए। और हमारे CM चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया साहब वो भी आए, वो भी हम सबको आकर मुबारकबाद दिया। अल्लाह उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। यही दुआ करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में प्यारे अल्लाह सबको खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, बहुत अमन से रमज़ान की ईद गुज़री। 30 रोज़े मिले, 30 तरावी मिले, हजरत का बयान हुआ, सब खुशियाँ मनाते हैं, एक से एक गले से मिलते हमें, हमारे दिल का कुफर सब निकल जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं पूरे कर्नाटका के अंदर, खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जैन भाई सब पूरे भाई भाई हैं। हम सब मिलकर एक खुशी पे मिलते हैं। हम उनकी ईद में जाते हैं, हिंदुओं की ईद में, उन्होंने हमारी ईद में आना है। अभी देखो हमारे सिद्धरामैया जी कर्नाटका के CM आए, हमारे साथ बैठे, हमारी नमाज के साथ देखे, उन्होंने भी एक मुबारकबाद दिए कि हमारे पास ज़ात और जमात नहीं है, हम हिंदू और मुसलमान सब एक मिलकर हम हैं। ये चैनल हमारे लिए हम ना पूछे, ये बोलने वाले, ये मैडम पकड़ने वाले, उनको हम शुभआबाद देते हैं, उनको ईद मुबारक की खुशियाँ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा खुद्दूस साहब के ईदगाह को ऐसो इधर पूरे जने भी
हमारी 30 दिनांक की जो रमज़ान में जो रोज़े रखती तो उसका अजर हमने अल्लाह ताला आज देती तो अल्लाह हमना सबको भी क्या बोली बख्शाए घर को चले जाओ तो वो बहुत बड़ी बात हुआ। तो हमना अल्लाह ताला इसे मौके बार बार हमना नसीब करें दे। माँ बाप के दुआयाँ बड़ियाँ के दुआयाँ ले को अल्लाह आगे पहुँचा दे और हमें हमारे हाथ से कितना खिदमत कर सकती है हमें कौम के वास्ते वो भी अल्लाह ताला हमना नसीब करें दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा। हमारे उलमा हमारे सिद्धरामैया साहब भी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा बयान दिए, छोटा बयान। तो ये क्या बोलती कर को बोले तो ये मोहब्बत। तो अब उन्होंने हमें सभी पूरे मिल को एकता से ज़िंदगी गुजारना, तो मया मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना। यहाँ हिंदू मुसलमान वो सभी क्या भी नहीं है। वो सिद्धरामैया साहब को हमना बहुत अच्छा फील हुआ। तो ऐसा मया मोहब्बत से हर एक को भी मिलने को ज़िंदगी गुजारने को जाना अल्लाह ताला इसे मौके हमना बार बार नसीब करें दे। अब देखो पूरे जने मिलती हैं, छोटे बच्चे भी आती, कितने छोटे छोटे कितने बच्चे ही, बड़े बड़े बुज़ुर्ग ही, नौजवान ही पूरे मिल को आती। तो कई के वास्ते आती, एकता जुड़ने के वास्ते आती। हमें पूरे भी मुसलमान एक होकर ज़िंदगी गुजारना। आज ईद का दिन है, ईद का नाम है ईद उल फितर। फितर एक ऐसी ईद है जिसमें एक महीना पूरा रोज़ा रहकर तमाम मुसलमान रोज़ा रहते, एक महीना सहरी करते, इफ्तार करते और आखिरी दिन यानी 30वां दिन मुकम्मल होने के बाद और शव्वाल का पहली तारीख़ है आज, और आज हम सब ईद मनाते हैं। और ईद ऐसी ईद है ये जो दुनिया में पहली मर्तबा मनाई जाती है और सबसे बड़ी ईद है तमाम मुसलमानों के, तमाम वर्ल्ड में, तमाम दुनिया में ये ऐसी ईद मनाई जाती है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चाहे किसी भी दुनिया के किसी खित्ते में होंगे, चाहे अंटार्कटिका में होंगे, चाहे साउथ इंडिया साउथ वर्ल्ड में होते, नॉर्थ पोल में होंगे, साउथ पोल में होंगे, ये हर जगह ईद मनाई जाती है। इसका जज्बा ऐसा है कि ये ईद के दिन सब एक जगह जमा होते हैं। आज जहाँ हम जमा हुए हैं उसका नाम है ईदगाह खुद्दूस साहब बेंगलुरु, और यहाँ पर तकरीबन 1 लाख के करीब जो अवाम है, मुस्लिम लोग आकर नमाज अदा करते हैं। इसको ईद की नमाज कहते हैं और ये ईदगाह कहलाता है, जहाँ पर ये खाजी साहब होते हैं, बेंगलुरु के खाजी, वो जो है ना सबको ईद का खुतबा अता करते हैं। खुतबे से मुराद उसमें ये कहते हैं कि तमाम मुसलमान आज सहर करे, इफ्तार करे, 1 महीना रोज़ा रहे, और आज के दिन यहाँ इसलिए हाजिर हुए कि सब मिलकर एक दुआ करें कि ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत कर, ऐ अल्लाह सबके नमाज़ा कबूल फरमा, ऐ अल्लाह सबके रोज़े कबूल फरमा, ऐ अल्लाह सबके गुनाह माफ़ फरमा। तमाम मुसलमानों के और हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए खैर और बरकत अता फरमा, ऐसी दुआ होती है। और ये दुआ, ऐसी दुआ हर मुल्क में होती है, हर गांव में होती है, तमाम इंडिया में होती है, तो अमेरिका में भी होती है, सऊदी में भी होती है। ये ऐसी ईद है जो हर जगह इसी शौक़ से, इसी जज्बे से मनाई जाती है। इसको ईद उल फितर कहते हैं। इसमें फ़ितर के माने हैं कि एक फ़ितरा देना। क्या है फ़ितरा? फ़ितरा के मतलब ये है कि हर एक फ़र्द, घर के हर एक आदमी के ऊपर जो है ना एक मुस्तकिल पैसा, अजनास या चावल, जवारी कुछ भी हो, वो 2 शेर अजनास देना और 200 रुपये फ़ितरा कैश अदा करना, गरीबों को देना, ताकि गरीब भी हमारे साथ अपनी ईद मना सके, खुशी मना सके। उनके लिए कपड़े देते हैं और बड़े बड़े मसाजिद में कपड़ों का, खानों का इंतज़ाम करते हैं। 1-1 हज़ार गरीबों को कपड़े और खाने तकसीम करते हैं। और जहाँ तक मैं देखा हूँ मस्जिद इलाही, वहाँ पर इस तरह से जो है ना मुज़म्मिम इंतज़ाम है, मुसलसल इंतज़ाम है, हर साल किया जाता है। लोग वो भी खुश होते हैं और हम उनको देकर खुश होते हैं। ये देकर खुश होने की ईद है। खुद तो खुश होते हैं मगर दूसरों को जो खुश देखने की तवक्को है वो बहुत बड़ी बात है। ये मुसलमानों में जो है ना एक ख़ास आदत है, फितरत है, ये उनका जज्बा है। और आज के दिन जो हम ईद मनाए हैं, अब ईद क्या होती है, हम अपने घरों को जाते हैं, जाकर जो भी अच्छी चीज़ पकाते हैं, जहाँ तक कोशिश करते हैं, गरीब भी होंगे, साहूकार भी होंगे, और
खाने के बाद और ईदगाह में जब बाहर निकलते हैं सब गले मिलते हैं। ये गले मिलना इतनी मामूली बात नहीं है। गले मिलना एक दूसरे की जो है ना माफ़ी कर लेना, तुम मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, गले मिलकर जो है ना ये जज्बा मुसलमानों को है कि खुशी मनाते भी हैं तो फरिश्ते ऐसे वक्त में ईद की नमाज के बाद उतर कर हमारी मग़फ़रत करते। फरिश्ते क्या करते हैं? हमारी मग़फ़रत करते। देखो अल्लाह फरमाता है आज मेरे बंदे एक महीना रोज़ा रखकर हाजिर हुए, मेरी दुआ कर रहे हैं, मैं इस दुआ को कबूल करता हूँ और इनके गुनाह माफ़ करता हूँ। ये जज्बा है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं आओ मेरे बंदों मैं तुम्हें आज माफ़ करता हूँ। सब की माफ़ी होती है, सब खुश होते हैं, सब ईद करते हैं। ऐसी ईद है ईद उल फितर। बहुत बहुत मुबारक। ಇವತ್ತು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಉಪವಾಸ 30 ದಿವಸ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ತಿನ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30-32ಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹುಜೂರ್ ಪಾಕ್ 1427 ಇಸ್ವಿ ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಜೈನ್ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾವು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಿಂದ. ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು 7 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫರ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಐಟಮ್ ನಮಾಜ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಫಜರ್ ಝೋರ್ ಅಸರ್ ಮಗ್ರಿಬ್ ಇಶಾ ಅಂತ, ಆ ಥರ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ 5 ಸಲ ನಮಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ. ಸಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ತಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಂಜಾನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಜೈನ್ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಜೈನು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ 5-5:30 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ರಂಜಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಉಪವಾಸ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, MLA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, CM ಬರ್ತಾರೆ, ಡೆಪ್ಟಿ CM ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು 6:32ಗೆ ನಮಗೆ ಉಪವಾಸ ತೆಗಿಯೋ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರ್ತದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರು 7 ಗಂಟೆ ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಗಂಟೆ ಅವರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಜಬ್ ತಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ का हुक्म होता है, जब तक हमें खाते नहीं तब तक हमें खाते नहीं, मेरे हिंदू भाई बहन उन्हें भी खाते नहीं. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು 5-5:30 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರಂಜಾನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. Eid is not just a celebration, it's a beautiful reminder of unity, compassion and spreading the happiness to one another. And the joy we see here in Masjid-e-Qadriya reflects the true essence of festival, where people come together, celebrate the festival and spread the happiness and brotherhood. Once again, Eid Mubarak to all. For more updates, stay tuned to Daily Salar Digital.